خبروں کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں محکمہ ہائی وے نے 3 سڑکوں کا PC4 ڈائریکٹر فائنانس کو بھجوا دیا۔ 6 کروڑ سے زائد تخمینہ لاگت سے سڑکوں کی بحالی ہو سکے گی۔ اسی بارے تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران۔ جی بالکل، محکمہ ہائی وے کی جانب سے 3 سڑکوں کی تکمیل کا PC4 ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کو بھجوا دیا گیا ہے۔ محکمہ ہائی وے کی جانب سے بھجوائے جانے والے PC4 کے مطابق ریاض نگر سے چک نمبر 630 تک سڑک کی بحالی پر 4 کروڑ 15 لاکھ لاگت آئی اور چک نمبر 582 تا 583 تک جو ہے وہ سڑک کی تعمیر و مرمت پر 1 کروڑ 33 لاکھ روپے محکمہ ہائی وے کی جانب سے خرچ کیے گئے اور چک نمبر 629 جیمبے موڑ سے 629 جو ہے اس پر تعمیر و مرمت کی جانب سے محکمہ ہائی وے کی جانب سے فنڈز خرچ کیے گئے اور اس کا جو PC4 ہے وہ محکمہ ہائی وے کی جانب سے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اسکیموں پر کام محکمہ ہائی وے کی جانب سے مکمل کیا جا چکا ہے اور فردر اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تفصیلات کے لیے آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سرگودا روڈ فیصل آباد، جہاں پر فاتر ڈیولپرز کے پروجیکٹ بزنس ہب کا سنگ بنیاد رکھنے کے حوالے سے تقریب جاری ہے، جس میں ہم نے 5 فلورز پہ گاڑیوں کی رسائی دی اور الحمدللہ آج یہ پروجیکٹ ہمارا کمپلیٹ ہے۔ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں سیوک سینٹر ہمارا مین GT روڈ کے اوپر گجرانوالہ میں 46 کنال پہ مشتمل یہ پروجیکٹ الحمدللہ اس کا فیز 1 آج ہمارا کمپلیٹ ہے۔ فیز 2 کی ہم کنسٹرکشن میں گئے ہیں اور ریجن مال فیصل آباد یہ آپ سب لوگ واقف ہوں گے، اس سے مین چینن روڈ کے اوپر واقع ہے۔ اسی طرح ایمریٹس مال بابر چوک میں اور ڈی پوائنٹ پلازا گجرانوالہ مین GT روڈ پہ واقع تھا جو کمپلیٹ ہے، ڈیلیورڈ ہے آج۔ اب آتے ہیں جی بزنس ہب پہ، جس پروجیکٹ پہ ہم آج ابھی ادھر موجود ہیں۔ اس کی کچھ بریفنگ دینا چاہوں گا آپ سب کو۔ یہ ہمارا ٹوٹل لینڈ ایریا یہاں پہ 32 کنالز کا ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ڈیولپرز آ کے زمین پہ بیٹھتے ہیں، زمین ان کے یا تو نام پہ نہیں ہوتی یا وہ کسی اور JV میں ہوتے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ یہاں پہ زمین کمپلیٹلی رجسٹرڈ ہے، ہمارے نام پہ ہے، جس کی وجہ سے ہم کلائنٹ کو آگے یہ چیز آفر کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ جیسے دیکھیں اس پروجیکٹ کو ہم نے 3 پورشنز میں سپلٹ کیا، جس میں ہمارا پہلا آگے والا فرنٹ پورشن ہے، یہ سفائر بلاک ہے۔ اس میں ہم نے یونٹس کے سائزز تھوڑے بڑے رکھے جو کہ برانڈز وغیرہ کو آپ جانتے ہیں کیٹر کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، جن کی ریکوائرمنٹ سٹارٹ ہی کوئی 1200 اسکوائر فیٹ سے ہوتی ہے۔ تو یہ 4 فلورز پہ مشتمل ہمارا فرنٹ ہے۔ اسی طرح ایک 51 فیٹ کی روڈ ہے جو پورے پروجیکٹ کو کیٹر کر رہی ہے اور یہ ڈرائیو تھرو پروجیکٹ ہے۔ سینٹر میں آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس سینٹرل پارک کے ایریا آ جاتا ہے جو کہ کمرشل پلاٹنگ ہے۔ اپروول ہم نے پورے پروجیکٹ کی لی، TMA سے اپرووڈ ہے۔ 45 فیٹ کی ہمارے پاس ہائٹ ریسٹرکشن ہمیں دی گئی TMA سے۔ 45 فیٹ تک کوئی بھی بندہ اگر پلاٹ میں جاتا ہے تو وہ کنسٹرکشن میں جا سکتا ہے، جس میں بیسکلی 4 فلورز آ جاتے ہیں۔ لوور گراؤنڈ آ جاتا ہے گراؤنڈ، فرسٹ اینڈ سیکنڈ فلور۔ اسی طرح پروجیکٹ کی خوبصورتی کو مینٹین رکھتے ہوئے ہم نے پارٹس کو بالکل سینٹر میں دیا اور اس کے بعد اگر پیچھے آ جائیں تو ہمارا ایک پلیٹینم بلاک آ جاتا ہے جو کہ ہم نے ایک بہت ہی افورڈیبل ریٹس کے ساتھ اس کو انوگریٹ کر رہے ہیں ابھی، اور وہ کیٹر کرے گا ہر طرح کے لوگوں کے لیے، جس میں ہمارے یونٹس 27 لاکھ سے سٹارٹ ہو کے تو اوپر 55 لاکھ 60 لاکھ تک چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایک رینڈرنگ تھی، تو یہ بیسکلی ہمارا سینٹرل پارک ایریا آ جاتا ہے۔ صاحب ہیں، میرے تایا ہیں، میرے چاچو ہیں، اور ان سب کے سامنے آج میں پہلی دفعہ کسی پروجیکٹ کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں، اور یہ ذمہ داری ان کی طرف سے میرے اوپر ڈالی گئی ہے کہ ایک پروجیکٹ کو آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہے اور اس پروجیکٹ کو آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے۔ جہاں تک بزنس ہب فیصل آباد کی بات ہے، بزنس ہب فیصل آباد is a project which is going to be a landmark of Sargodha Road. Sargodha Road ابھی تک تو Sargodha Road کے نام سے جانی جاتی ہے، لیکن ہماری ایونچوئل کوشش یہ ہے کہ Sargodha Road فیوچر میں بزنس ہب فیصل آباد کے نام سے جانی جائے۔ اینڈ فاتر ڈیولپرز کے بارے میں اگر میں بات کروں تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ کچھ ویڈیوز دیکھ کے ہو گیا ہوگا کہ منظور انٹرپرائزز اور فاتر کا موٹیو سیم۔ ایک ورڈ میں پہلے نہیں سمجھتا تھا
वो मुझे समझाया गया अवामी फलाह व बहबूद। एंड मंजूर एंटरप्राइजेस का और फातिर का एक ही मकसद है कि क्लाइंट के साथ पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने का। मोटिव इज बेसिकली डेवलपिंग अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। मैं वो अपनी बात एक दफ़ा फिर से रिपीट भी कर देता हूँ कि ये मेरी वालिद साहब की तरफ से और एक गाइडेंस थी कि हमेशा अवामी फलाह बहबूद के मकसद को पेश नज़र रखना। इस लफ्ज़ का मतलब मुझे पहले नहीं आता था, एंड जब मैंने इस लफ्ज़ के मतलब को समझा तो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी हमारे भाई हजरात बिजनेस हब फैसलाबाद पे तशरीफ लाए हैं, उनसे एक बहुत अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप ऑलरेडी डेवलप हो गया हुआ है। और यही कोशिश है कि आने वाले और जितने भाई हजरात हमारे पास आए उनसे एक पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा डेवलप हो जाए और बिजनेस रिलेशनशिप उसके बाद आए। बहुत ज़िम्मेदारी से इसको करीब से इसको निभाया। और जहाँ तक आ जाता है हमारा तामीर का तल्लुक, तो ये दिखा रहे हैं पीछे स्क्रीन पे सिविक सेंटर के पिक्चर्स दिखा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देखें तो 38% हमारा सेलेबल निकला था और बाकी सारा एरिया हमने सर्विसेज में दे दिया। लेकिन वो मकसद ये सारी सहूलत क्लाइंट के लिए दी है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि लोग घर से निकले तो उनको पहले से पता हो कि हमने जाना कहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक इसमें ये भी है कि बाहर कोई गाड़ी क्यों पार्क करेगा। जब आपको प्रोजेक्ट के अंदर इतनी सहूलत मौजूद होगी तो फिर ज़रूरत नहीं रहती कि गाड़ी आप बाहर पार्क करें। तो ये सिविक सेंटर में ये गुजरांवाला का प्रोजेक्ट है और इसमें 2500 से लेके 3000 तक गाड़ी की पार्किंग है। तो इतनी एट ए टाइम, एक टाइम में। और इसकी कंस्ट्रक्शन का अगर म्यार देखना है तो जैसे ये फुटिंग उन्होंने दिखाई थोड़ी सी, तो ये इस तरह इसकी तामीर और फाउंडेशन से लेके एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसको तामीर किया जाता है। और अगली दिखाएं स्केल पिक्चर को, कंस्ट्रक्शन की फाउंडेशन। हाँ ये देखें, ये अगर मैं इसको ये माइनस में यानी कि जैसे बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन गई है तो उसके आउटर साइड पे मम्ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से लगाई गई है। और इस चीज़ का बड़ा स्पेशल ख्याल रखा जाता है कि अंदर किसी किस्म की पानी की सीपेज ना जाए, या अगर कोई बाहर से पानी की या बारिशों की वजह से कोई पानी उसमें आ जाता है तो लेकिन बिल्डिंग के अंदर नहीं आएगा। सेक्शन गई है तो उसके आउटर साइड पे मम्ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से लगाई गई है। और इस चीज़ का बड़ा स्पेशल ख्याल रखा जाता है कि अंदर किसी किस्म की पानी की सीपेज ना जाए, या अगर कोई बाहर से पानी की या बारिशों की वजह से कोई पानी उसमें आ जाता है तो लेकिन बिल्डिंग के अंदर नहीं आएगा, उसमें प्रॉपर। अब आपको बताएं, सोने की कीमत मुसलसल इजाफा हो रहा है। सराफा मार्केट में फी तोला सोना 1500 रुपये मजीद महंगा हो गया। एक तोला सोना 1,75,500 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 10 ग्राम सोना 1,287 रुपये महंगा हुआ, 1,50,662 रुपये का हो गया। आपको बताते चलें, सोने की बढ़ती कीमतों के हवाले से सराफा मार्केट में फी तोला सोना 1,500 रुपये महंगा हो गया। एक तोला सोना 1,75,500 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 1,287 रुपये महंगा हुआ और नई कीमत 1,50,462 रुपये है। फेस्को में सार्फिन की तादाद 48 लाख से तजावुज कर गई। फेस्को ने 9 नए ग्रेड स्टेशन तामीर करने की मनसूबाबंदी तैयार कर ली।
7 किलोमीटर तक नई तारें बिछाई जाएंगी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज ही बिल्कुल सार्फिन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र फेस्को की जानिब से नए ग्रिड स्टेशन की तमीर का सिलसिला आज जारी है। इसी हवाले से फेस्को की जानिब से 9 नए ग्रिड स्टेशन की तमीर के हवाले से मनसूबाबंदी कर ली गई है। 700 किलोमीटर तक जो है वो बिजली की तारें बिछाई जाएंगी ताकि सार्फिन की जो तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है उनके मुताबिक सिस्टम में वसत पैदा की जा सके। इसी हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तहसीन अवान की जानिब से भी फेस्को अफसरान को हदायत जारी कर दी गई हैं कि सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक जो है वो सिस्टम को भी जदीद किया जाए और सिस्टम को भी बढ़ाया जाए। इसी हवाले से 9 नए ग्रिड स्टेशन की तमीर के हवाले से फेस्को की जानिब से मनसूबाबंदी जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली गई है। फेस्को रीजन भर के 8 इजला में जो है वो 9 नए ग्रिड स्टेशन बनाए जाएंगे जिससे सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद को सहूलत फराहम की जा सकेगी। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन की तादाद 48 लाख से तजावज़ कर चुकी है। सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है और सिस्टम में नए ग्रिड स्टेशन शामिल किए जा रहे हैं और 700 किलोमीटर तक नई तारें जो हैं वो बिछाई जाएंगी ताकि सार्फिन को सहूलत फराहम की जा सके, नए कनेक्शंस का इजरा बर वक्त मुमकिन बनाया जा सके और इसके साथ साथ बल्क कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर और जो नई कॉलोनीज आबाद हो रही हैं, नई इजाफी आबादियाँ आबाद हो रही हैं, वहाँ तक बिजली पहुँचाई जा सके और बिजली के नए मनसूबों पर अमल दरामद किया जा सके। इसी हवाले से 9 नए ग्रिड स्टेशन बनाने के हवाले से बहुत शुक्रिया इमरान हसन तफसीलात के लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों पर काम जारी है। 6 जनवरी तक इब्तदाई फहरिस्तें आवेज़ा कर दी जाएंगी। बल्दियाती इलेक्शन के मुतालिक उम्मीदें पैदा हो गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा इलेक्शन के हवाले से। जब बात करें हल्का बंदियों के हवाले से तो फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों पर काम शुरू कर दिया गया जो कि 6 जनवरी तक जारी रहेगा। उसके बाद इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त आवेज़ा की जाएगी, फिर उस पर एतराज़ात लिए जाएंगे और फरवरी में जो है वो हतमी फहरिस्तें आवेज़ा की जाएंगी। अप्रैल के आखिर में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन अमले का ये मौक़िफ़ था कि यहाँ पर जो हल्का बंदियाँ तीसरी मरतबा की जा रही हैं, यूसी वाइज की जा रही हैं और सिलसिले में जो कमेटी बनाई गई है उसकी रोशनी में तजावीज़ भी ली जाती हैं और जो पहली हल्का बंदियाँ उनसे ये डिफरेंट हो रही हैं क्योंकि जो एक्ट में बुनियादी तौर पर तब्दीली वाक़ हुई है, इसी वजह से नई हल्का बंदियाँ करनी पड़ रही हैं। और ये भी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ये आखिरी हल्का बंदियाँ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से होंगी। अगर हुकूमत की जानिब से अब दोबारा से एक्ट तब्दील किया गया या कोई और रुकावट खड़ी की गई तो इन्हीं हल्का बंदियों पर अप्रैल के आखिर में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। हाँ, अगर सूबाई नशिस्तें सूबाई असम्बली टूट जाती है, बरकरार नहीं रहती तो फिर अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका। टैक्स बार एसोसिएशन के वफ्द की FPR हेडक्वार्टर में मेंबर लीगल के साथ मीटिंग हुई। मुलाकात में सरपरस्त आला फैसलाबाद टैक्स बार मलिक बशीर अहमद, सेक्रेटरी टैक्स बार हमाद इफ्तिखार, पाकिस्तान टैक्स बार के सीनियर नायब सदर सैयद मजहर हुसैन रिजवी, साबिक सदर टैक्स बार शाहिद मिनहास समेत दीगर शरीक थे। शरका का कहना था कि फैसलाबाद में टैक्स केसेस के मुकाबले अपील जोन के पास स्टाफ की कमी है। डिवीजन भर के लिए अपील जोन में 2 कमिश्नर्स जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। कमिश्नर्स अपील जोन की तादाद कम होने के बाद सैकड़ों केसेस इल्तवा के शिकार हैं। अपील जोन की तादाद बढ़ाने के लिए कमिश्नर अपील की असामियां भी बढ़ाई जाएं। अब आपको बताएं, मैट्रिक के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात क्लियर करने वाले तलबा के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। अब तलबा अपने साल ज़ाया करने की बजाय फर्स्ट ईयर में दाखिला ले सकेंगे। दूसरे सालाना इम्तिहानात में कामयाब उम्मीदवारों को 2 जनवरी तक फर्स्ट ईयर में दाखिले की इजाज़त मिल गई। ताख़ीर की सूरत में उम्मीदवार 500 रुपये लेट फीस के साथ 12 जनवरी तक दाखिला भिजवा सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का बाग़ जना में बच्चों की लाइब्रेरी का दौरा। लाइब्रेरी में मौजूद डीन से लाइब्रेरी के औकात बारे ब्रीफिंग भी ली गई। मज़ीद जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख की जानिब से बाग जना में बनाई गई बच्चों के लिए लाइब्रेरी का न सिर्फ विजिट किया गया बल्कि इसको बच्चों के लिए मजीद मौसर और कारआमद बनाने के हवाले से भी अहकाम जारी किए गए हैं। हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। सर, ये बताइएगा कि बच्चों के हवाले से बाग जना में लाइब्रेरी तो पहले भी मौजूद है लेकिन बच्चों के आने जाने का सिलसिला जो है वो उस कदर ज़्यादा नहीं है जिस कदर एक्सेप्ट किया जा रहा था कि शायद लोग यहाँ पर आएंगे। तो मजीद बच्चों को एंगेज करने के हवाले से क्या हिदायत जारी की गई हैं और किस तरह से बच्चों को इंटरेक्ट किया जाएगा इस लाइब्रेरी के साथ?
دیکھیے چھوٹے بچوں کے اندر کتاب بینی کا شوق پیدا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں ایک بار کتاب پڑھنے کی ایک عادت پڑ جائے تو پھر وہ آخری عمر تک آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہ ایک ویکینڈ پروگرام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، پی ایچ اے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مل کے ہم ہر سنڈے کو جو ہے وہ بچوں کو یہاں پہ 2 گھنٹے کے لیے انگیج کیا کریں گے۔ اس کے اندر بچوں کو کتابیں بھی دی جائیں گی پڑھنے کے لیے، اس کے اندر جو مختلف قسم کی بچوں کے حوالے سے جو اخلاقی موویز ہیں وہ بھی دکھائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی سٹوری ٹیلنگ وغیرہ کی جائے گی، کھانے پینے کے بھی سٹالز لگائے جائیں گے تاکہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں پر لائیں اور بچے جو ہے کنسٹرکٹیو اور ہیلدی ایکٹیویٹی کے اندر انگیج ہو سکیں۔ اچھا سر، اس پہ یہ بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے خاص کر ان پیرنٹس کے لیے بہت اس لائف شکریہ وقاص بیگ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی۔